فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها جاءتها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. سوائے اس کے نہیں دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو آسمان سے ہم برساتے ہیں. وہ زمین کی نباتات اور انگوریوں کے ساتھ مل جاتا ہے، پھر اسی سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے اور مزین ہو جاتی ہے، اسی وقت ہمارا حکم جو ہے وہ آتا ہے رات کے وقت میں یا دن کے وقت میں، ہم اسے کٹی ہوئی کھیتی کی مانند کر دیتے ہیں، گویا کہ کل یہاں پہ کچھ بھی موجود نہ تھا. اسی طرح سے ہم تفصیلی نشانیاں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے. سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر بے شمار چیزیں رکھی ہیں جس میں ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، سبق ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے ہمیں خود حکم دے دیتے ہیں کہ یہ کام کر لو، یہ تمہارے لیے مفید ہے، اور یہ نہ کرو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتلا دیا جاتا ہے کہ یہ کام کر لو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور یہ کام نہ کرو تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور کبھی اور بھی مختلف طریقے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ اللہ کی یہ مخلوق، اللہ کے یہ بندے اپنے رب کو پہچان سکیں، اپنے معبود کو پہچان سکیں اور اپنے معبود کی بندگی کر لیں اور دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں. آج کے جمعۃ المبارک میں جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وصایا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بھی ایک انوکھا اور اچھوتا انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے نبیوں کا اللہ کی مخلوق کو سمجھانے کا. جبریل علیہ السلام کی وصیتیں. حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاء جی جبریل، ایک دفعہ میرے پاس آسمانوں سے جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے آ کر مجھے مخاطب کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین نے کچھ وصیتیں کی اور مجھے آتے ہی اس نام سے پکارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے، عش ما شئت فإنک میت، عش ما شئت فإنک میت. جبریل وصیت کرنے والے ہیں اور جسے وصیت کی جا رہی ہے ان کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا کہا؟ نمبر 1 کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی گزاریے، خوب گزاریے،
जितनी चाहिए उतनी गुजार लीजिए। ला महल्ला आखिर एक न एक दिन इन्नका मय्यत, आप फौत हो जाने वाले। ये मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है। अस्सुनन अल-कुबरा लिल इमाम अल-बैहक़ी, अल-मुअज्जम अत-तबरानी, इन तमाम किताबों में ये रिवायत मौजूद है और उलमा ने इसको सही कहा। शेख अल्बानी रहमहुल्लाह ने इसको सही कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जितनी जिंदगी बसर करना चाहते हैं कर लीजिए, जैसे भी जिंदगी बसर करना चाहते हैं कर लीजिए। फ़इन्नका मय्यत, एक दिन आएगा आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे और आप फौत हो जाएंगे। वसीयत नंबर 1। वसीयत नंबर 2, अहबिब मन शित, ऐ प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिससे आप मोहब्बत करना चाहते हैं कर लीजिए। एक चीज नहीं है दुनिया में, औलाद भी है, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, बीवियां भी हैं, माँ बाप भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, तिजारत भी है, मकान भी है, ओहदे भी हैं, अलगर्ज दुनिया की हर चीज है। सब चीजों को मुतलकन सब इस बात के अंदर जो है वो शामिल कर दिया। अहबिब मन शित, जिस चीज से भी आप मोहब्बत करने वाले हैं कर लीजिए। फ़इन्नका मुफ़ारिकुहु, एक दिन आएगा आपकी वो महबूब तरीन चीज आपको छोड़ना पड़ेगी और आप छोड़कर वहां से चले जाएंगे। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम की वसीयत है, बड़ी खूबसूरत बातें हैं, जरा गौर से सुनिए। या रसूलल्लाह, जिससे भी आपने मोहब्बत करनी कर लीजिए, अपनों से, बेगानों से, दुनिया में कौन सी चीज है जिसके साथ जितनी मोहब्बत, जैसे मोहब्बत करना चाहते कर लीजिए। एक दिन आएगा आप उस महबूब चीज को छोड़कर जुदा होने वाले हैं। नंबर 3, तीसरे नंबर पे फरमाया वअमल मा शित, अमल कर लीजिए, जौन सा भी अमल करना है, अच्छा भी है, बुरा भी है, नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, सच्चाई, अमानत, दयानत, और झूठ भी है, फराड भी है, धोखा भी है, बेईमानी भी है, फिल्में भी हैं, ड्रामे भी हैं, बेहयाई का सामान भी है। इअमल मा शित, जो अमल करना है कर लीजिए। फ़इन्नका मजज़ियुन बिह, आपको आपके अमल का जो है वो बदला दिया जाए। अच्छा किया है तो अच्छा बदला मिल जाएगा, बुरा किया है तो बुरा बदला जो है वो आपको अता कर दिया जाए। इअमल मा शित फ़इन्नका मजज़ियुन बिह। वाइलम, चौथी वसीयत, आपने फरमाया अन्ना शरफल मुमिन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जान लीजिए मोमन का मुकाम और मोमन की अजमत और मोमन की शान वो किस चीज में है? क़यामुल लैल, रात की तहज्जुद में है। मोमन अगर अपने मुकाम और मर्तबे को पाना चाहता है, ऊंची इज्जत लेना चाहता है, ऊंचा शान लेना चाहता है, उरूज सुरैया की बुलंदियों तक पहुंचना चाहता है, फी क़यामिल लैल, उसका उरूज जो है वो तहज्जुद की नमाज में। वाइज़ुहु इस्तिग़नाउ अनिन नास, और पांचवी और आखिरी वसीयत ये है, अगर वो इज्जत लेना चाहता है, अगर वो दुनिया में अपने आप को मुअज़्ज़ज़ बनाना चाहता है, तो याद रख ले इस्तिग़नाउ अनिन नास, लोगों से बेपरवाह हो, लोगों का मोहताज ना बने, लोगों के साथ ताल्लुक ना जोड़े, इस नाहिए से कि यहां से मुझे कुछ मिलेगा, मैं इनका भूखा हूं, मैं इनका मंगता हूं, मुझे ये देते हैं, मैं इन्हीं के सर पे जी रहा हूं। और मैं अगर ये कैफियत रहेगी तो दुनिया में कभी इज्जत नहीं पा सकोगे। इन चीजों से मुस्तगनी हो जाओ, तुम जो है वो इज्जत पा जाओ। ये 5 वसीयतें जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, वो शख्सियत जो आसमान की जानिब से वही जब उतरती है तो उसके ऊपर उनको अमीन बनाया गया, रसूल अमीन, हमने ऐसे फरिश्ते के जरिए से वही नाज़िल किया जो रसूल अमीन है, हमारा अमानतदार कासिद है, कभी खयानत नहीं करता। वो वसीयत कर रहे हैं, और किसे वसीयत कर रहे हैं?
जो जमीन के ऊपर सबसे आला शख्सियत, सबसे अजीम शख्सियत, और जमीन की तरफ वही की जाती है, उस वही के अमीन, उनकी तरफ जो है ये वसीयतें की जा रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअबुदन्नास, लोगों में से सबसे ज्यादा इबादत करने वाले, अतकन्नास, लोगों में से सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार, अखवफुन्नास, लोगों में से सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले, क़यामत का फिक्र अपने दिल में रखने वाले, दुनिया से बेरगबती रखने वाले, आखिरत की हमेशा अपने सामने फिक्र रखने वाले, जिन्हें दुनिया की कोई गरज नहीं है, कोई मकसूद नहीं है, दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, हमेशा यही फिक्र दामनगीर है कि आखिरत कैसे बनानी है, उस शख्सियत को जो है ये वसीयतें की जा रही हैं। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्माशे, जितनी जिंदगी गुजारनी है गुजार लीजिए, आपने एक दिन मरना है, आपने एक दिन फौत हो जाना है। हमारा तो ये मसला ही नहीं खत्म होता ना कि आप फौत हुए कि नहीं हुए। जिब्रील तो कहते हैं आपने फौत होना है, फातिमा रजी अल्लाह ताला तो कहती है अब्बाजान फौत हो गए। अनस तुम्हें क्या हो गया, किस तरीके से तुमने मेरे बाप के जिस्म के ऊपर जो है तुमने मिट्टी जो है वो डाल दी, क्या तुमने ये चीज जो है वो बर्दाश्त हो गई, किस तरीके से तुमने मिट्टी डाली। हमारे तो मसले ही खत्म नहीं होते ना कि आप ममाती हैं, याती हैं या ममाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है या फौत हो गए हैं। ये सही अहादीस हैं, सही आयात हैं कुरान मजीद की। इन्नका मय्यत, आप फौत होने वाले, अल्लाह ने भी कहा इन्नका मय्यत, जिब्रील ने भी कहा इन्नका मय्यत, आप फौत होने वाले और हो चुके हैं। बहरहाल पहली वसीयत ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की गई। हकीकत में आपको तो जरूरत नहीं है, आपकी कैफियत तो आप खुद जानते हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया, सबसे बढ़कर इबादत करने वाले और आखिरत के बारे में खुद बयान करते हैं। उरिदत अलैहिल जन्नत वन नार फलम अरा कल यौमी फलम अरा मंजरन कल यौम लौ तअलमून मा आलम लज़हिकतुम कलीलन व लबकीतुम कसीरा। लोगों मुझे जन्नत और जहन्नम दिखाई, आज की तरह का खैर और शर में मंजर मैंने कभी नहीं देखा। फलम अरा कल यौमी फिल खैर व शर, शर और खैर में इतना खतरनाक और इतना खूबसूरत मंजर मैंने कभी नहीं देखा। अगर जिन बातों का मुझे पता है तुम्हें भी पता चल जाए, तुम्हारी हंसी बंद हो जाए और तुम्हारा रोना जो है वो ज्यादा हो, और आप सजदे में पड़ जाते, वफी सदरी ही अजीजुन का अजीजुल मिर्जल, आप रोते सजदे में, ऐसे रोते आपके सीने से जोश हंडिया के उबलने की तरह जो है वो आवाज आती, और आप जो है वो इस तरीके से सजदे में पढ़कर अल्लाह के हुजूर जो है वो रोया कर। आपको तो वसीयत करने की जरूरत नहीं है। असल में ये गोया कि वसीयत हमें ही की जा रही है, नबी के वास्ते से हमारी तरफ जो है वो पैगाम जो है वो भेजा जा रहा है। ये दुनिया में मस्त लोग हैं, आपकी तो कैफियत ही कुछ और है। ना आपने सोने चांदी के पहाड़ जमा किए, माल गनीमत में जितना माल आता सारे का सारा लोगों में खर्च कर देते। अबू सुफियान जैसे लोग अपने साथियों से कहते मुसलमान हो जाओ, ये नबी तो इसको बखीली का कोई डर ही नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा सखावत करने वाला है। जितना माल जमा हुआ आपने सारा के सारा जो है वो लोगों के दरमियान तकसीम कर दिया, कोई माल अपने लिए नहीं रखा। घर में तो क्या रखा, बेटा मैं तुझे ऐसा वजीफा ना बतला दूं जो खादिम से ज्यादा अच्छा हो। बिस्तर पे सोते वक्त सुभान अल्लाह 33 दफा पढ़ लिया करना, अल्हम्दुलिल्लाह 33 दफा पढ़ लिया करना, 34 दफा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करना। अल्लाह तेरी थकावट भी दूर कर देगा और तुझे उनसे कहीं ज्यादा अदर जो है वो अता फरमा देगा। ये हमारे प्यारे नबी, ये हमारे प्यारे मुर्शिद हैं, लोगों के भी मुर्शिद हैं। हमारे मुर्शिद ये जो अपने घर में माल नहीं लेकर जाते हैं, दुनिया के मुर्शिद जो है वो नजराने लेकर जाते हैं। हमें नजराने दीजिए, हमें नियाज़ें दीजिए, लेकिन हमारा जो हकीकी मुर्शिद है वो लोगों के नजराने वसूल नहीं करता। अगर नजराने आ भी जाते तो वापस लोगों को दे देते। अपने घर में अपनी बेटी को, अपने अहले वयाल को नजराने नहीं तस्लीम करते। ये आपकी कैफियत है। और आपने अपने शागिर्द जो तैयार किए दुनिया के बारे में, उनकी कैफियत देखिए। इश्माशित फइन्नका मय्यित, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जितनी मर्जी जिंदगी गुजारिए, आप अनकरीब फौत होने वाले।
अपने शागिर्दों को आपने सबक पढ़ाया, शागिर्दों ने सबक पढ़ा। किस किस की बात करूं, सिर्फ एक ही मिसाल जिक्र करता हूं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु इज़ा वक़फ़ अला क़ब्रिन बका हत्ता इब्तल्लत लिह्यतुहु, जब कब्र के ऊपर जाकर खड़े हो जाते तो इतना रोते दाढ़ी मुबारक जो है वो तर हो जाती, गीली हो जाती, भीग जाती दाढ़ी। उनकी घनी दाढ़ी थी, बड़ी दाढ़ी थी। तो कहते हैं, बयान करने वाला कहता है, हजरत उस्मान कब्र के ऊपर आ जाते तो इतना रोते उनकी दाढ़ी मुबारक जो है वो तर हो जाती। कहा जाता तुज़कर अल जन्नत वन नार फलम तबकी, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा होता है, आप रोते ही नहीं है। कब्र का तज़किरा होता है तो आप बहुत रोते हैं। कहा इसलिए रोता हूं, मैंने अपने प्यारे हबीब से सुना है, इन्नल कब्र अव्वल मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, ये कब्र जो है ये आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। इन्नका मय्यत, तूने मरना है, जितनी मर्जी जिंदगी गुजार ले, बिल आखिर इस कब्र के अंदर तूने आना है, और ये पहली मंजिल है। फ़इन नजा मिन्हु फमा बादहु ऐसर, अगर यहां पे निजात और कामयाबी मिल गई तो बाद में आना वाला मामला जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा। व इल्लम यंजु मिन्हु, अगर इससे निजात न मिली, फमा बादहु अशद्द मिन्हु, तो फिर बाद वाला मामला जो है वो इससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह भी सुना है, हज़रत उस्मान फरमाते हैं, यह भी सुना है, मा रअयतु मंजरन कत्तु अफ़ज़ा इल्लल कब्र अफ़ज़ा मिन्हु, मैंने कोई मंजर ऐसा खतरनाक और खौफनाक नहीं देखा मगर कब्र को जो है वो उससे ज्यादा खौफनाक जो है वो पाया। ये आपके शागिर्द हैं, आपको भी इस वसीयत की जरूरत नहीं, और आपके शागिर्दों ने आपसे सबक भी खूब याद कर लिया, उनको भी इस वसीयत की कोई ज्यादा जरूरत नहीं, उन्होंने भी जो है वो सबक बड़ा अच्छा प्यारा याद कर लिया। ये वसीयत असल में मेरे और आपके लिए, इश्मा से फ़इन्नका मय्यत, और जितनी मर्जी जिंदगी गुजारनी है गुजार लो, एक दिन तुमने मरना है, एक दिन तुमने कब्र में जाना है। ये दुनिया के लालच में और चक्करों में ना पड़ो, ये दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, दुनिया जायल होने वाली है, खत्म होने वाली है। तुम किस किस चीज के ऊपर सवार हो जाते हो और अपनी आखिरत से और अपनी मौत से जो है वो गाफिल हो जाते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में खूब बेहतरीन अंदाज में जो है ये बातें वाज़ेह कर दी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दे। अगर तुम्हारे माल ने और तुम्हारी औलाद ने तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया, याद रख लो तुमसे बड़ा खसारा पाने वाला कोई नहीं होगा, सबसे बड़े खसारे पाने वाले तुम बन जाओ। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़, लोगों जो तुम्हारे पास है ये खत्म हो जाने वाला है, और जो अल्लाह के पास है वो हमेशा बाकी रहने वाला। वला नज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनिहिम बिअहसनि मा कानू यअमलून, जो लोग दुनिया के ऊपर ज्यादा हिरस नहीं करते, आने वाली मुशक्कतों और तकलीफों पे सब्र करते रहते हैं, हम उनको उनके अमल का, उनसे अमल से भी ज्यादा बेहतरीन अजर जो है वो अता फरमाएंगे। ये दुनिया की कैफियत खोल खोल कर जो है वो बयान कर दी। एक अरबी ने अरबी जुबान के अंदर बड़े खूबसूरत जुमले जो है वो कहे हैं। अरबी जुबान वैसे बड़ी खूबसूरत है, पढ़ी जाए तो बड़ा मजा आता है। उसने इसी मामले का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, इश्मा से फ़इन्नका मय्यत, खूब जिंदगी गुजार लो, एक दिन मरना है, अपने लफ्जों में इस तरीके से बयान किया है। उसने कहा दुनिया मता व मताउहा ज़ाइल, दुनिया मता व मताउहा ज़ाइल वल हयातु अय्यामुन वल अय्यामु कलाइल वलम यबका मिन कलीलिहा इल्लल कलील। तर्जुमा सुनिए, कहने लगा दुनिया जो है ये सामान है और दुनिया का सामान खत्म हो जाने वाला, दुनिया का सामान बाकी रहने वाला नहीं है। ये जिंदगी
یہ زندگی کے چند دن ہیں. الحیات و ایام، زندگی جو ہے وہ چند دنوں کا نام ہے. وَأَيَّامُهَا قَلَائِلُ، اور اس کے دن بڑے تھوڑے ہیں. زندگی کے دن بڑے تھوڑے ہیں. اور میری اور آپ کی زندگی میں سے وَلَمْ يَبْقَ مِنْ قَلِيلِهَا إِلَّا الْقَلِيلُ، ہماری زندگی جو باقی رہے گی وہ تو بہت ہی تھوڑی باقی رہے گی. وہ تھوڑے میں سے بھی تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے. یہ ساری دنیا جو ہزاروں سال کی ہے یہ بھی بہت تھوڑی ہے. اور اس زندگی میں سے 60 سالہ زندگی ہماری 70 سالہ 80 سالہ 100 سالہ 30-40 سال جس میں سے گزر گئے، باقی کتنی باقی رہ گئی ہے؟ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ قَلِيلِهَا إِلَّا الْقَلِيلُ، تمہاری تھوڑی زندگی میں سے بھی تھوڑا حصہ باقی رہ گیا. اس کو جو ہے وہ محفوظ کر لوں. وہ کتنا باقی رہ گیا؟ جو شروع میں نے آیات پڑھی ہیں سورۃ یونس کی، اس کی طرف تھوڑا سا دوبارہ توجہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالی اس زندگی کو خوب کھول کر جو ہے وہ واضح کر رہے ہیں. فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، لوگوں دنیا کی مثال کیسی ہے؟ کماء انزلناه من السماء، اس پانی کی طرح جو ہم نے آسمان سے اتارا. فاختلط به نبات الارض، زمین کی کھیتی اور زمین کی انگوریوں کے ساتھ وہ پانی جا مکس ہو جاتا ہے اور تھوڑی بہت انگوری پیدا ہوتی ہے. مما یاکل الناس والانعام، جہاں سے انسان اور چوپائے جو ہے وہ کھاتے ہیں. لیکن کچھ دیر کے بعد حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہ دنیا کی مثال ہے. یہ کھیتی لہلہاتی ہے، ہوا ہلکی سی چلتی ہے تو پودے اور فصلیں دائیں اور بائیں جو ہے وہ نیچے اور اوپر جو ہے وہ گھومتے ہیں اور کتنا پیارا اور خوبصورت منظر لگتا ہے. باغ لہلہاتا ہے اور پھول جو ہے وہ کھلکھلا اٹھتے ہیں. اس کی رونقیں اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہیں. کسان اور باغ کا مالی اور مالک خوش ہوتا ہے دیکھ کر. اور اس طرح کی خوشی انسان کو دنیا میں دوسری نعمتوں میں نہیں ملتی. کبھی جا کر پوچھئے اس سے، جب باغ لہراتا ہوا انسان جو ہے وہ اپنے باغ کو دیکھتا ہے، کہا جب وہ خوبصورت ہو جاتا ہے پھر اس وقت اچانک کیا ہوتا ہے؟ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، دن اور رات کے وقت اچانک ہمارا عذاب آ جاتا ہے. کوئی طوفان آ جاتا ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، کوئی تیز آندھی آ جاتی ہے، کچھ بھی آ جاتا ہے. فجعلناها حصیدا، ہم اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیتے. کالن تغن بالامس، گویا کہ یہاں پہ کوئی چیز تھی نہیں. فرمایا یہ تمہاری زندگی، یہ اچانک آتی ہے پھر آہستہ آہستہ اپنے جوبن پہ پہنچ جاتی ہے. نوجوان خوبصورت کاروبار کا مالک، بلڈنگوں کا مالک اور بہت بڑا انجینئر اور بہت بڑا ٹھیکیدار اور بہت ہی زیادہ عمدہ کام کرنے والا، اچانک آنن فانن جو ہے وہ سب جو ختم ہو جاتا ہے. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، یہ نشانیاں ہم بیان کرتے ہیں، کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس یہ توڑی بھری ہوئی نہیں ہے بلکہ عقل ہے، بہترین عقل ہے جو ہم نے عطا کی ہے ان کے پاس وہ. ان کے لیے ہم اس طرح کی نشانیاں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تاکہ وہ بات سمجھ سکیں. باقی لوگوں کے جن کے ہاں توڑی بھری ہوئی ہے ان کو ان باتوں کی کوئی سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے، ان کو کیا معلوم دنیا کیا ہوتی نہیں. ہر انسان کو پتا ہے، ہر انسان کے دل میں اللہ نے دماغ لگا رکھا ہے، دل لگا رکھا ہے، خواہشیں لگا رکھی ہے، سب کو معلوم ہے دنیا کیا ہوتی ہے. لیکن فرمایا یہ نشانیاں عقل مند لوگوں کے لیے ہیں، غور و فکر کرنے والے جو اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے. تو کہا عش معاشر، پہلی وصیت، اور جتنی زندگی گزارنی ہے گزار لو، بڑے ہو کر گزار لو، چھوٹے ہو کر گزار لو، رئیس زادے ہو کر گزار لو، غریب زادے ہو کر گزار لو، حاکم بن کر گزار لو، رعایا بن کر گزار لو، تندرست بن کے گزار لو، غریب اور جو ہے وہ بیمار بن کے گزار لو، اعلیٰ قسم کے محلات میں گزار لو یا جھونپڑیوں کے اندر گزار لو. عش ما شئت فإنک میت، تو لینڈ لارڈ ہے تو بھی مرنے والا ہے، قبر میں آنے والا ہے. تو غریب ہے تو بھی قبر میں آنے والا ہے. تو محلات میں رہنے والا ہے تو بھی قبر میں آنے والا ہے. تو جھونپڑیوں میں اور آسمان کی چھت تلے رات گزارنے والا تو بھی قبر میں آنے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیجئے جتنی زندگی گزارنی ہے گزار لیجئے، جیسے زندگی گزارنی ہے گزار لیجئے. فإنک میت، آپ مرنے والے ہیں. اس بات کو جو ہے وہ ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ مرنے والے ہیں. آج ہمیں یہ مرنا بھول چکا ہے. جو وصیت محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جا رہی ہے
वो वसीयत हमें भूल चुकी है। जीना तो हमें याद है, जी लीजिए बेटा, जी लो, मुस्तकबिल है, ये काम कर लो, वो काम कर लो, वो काम कर लो, अपना मुस्तकबिल संवार लो। लेकिन कभी वालिदैन अपनी औलाद को नहीं कहते बेटा अपना मुस्तकबिल बना लो, तुमने एक दिन मरना है, मरने के बाद वाला मुस्तकबिल बना लो, तुमने एक दिन मरना है। नहीं मेरे बेटे ने नहीं मरना, ये तो अभी जवान हो रहा है, इसकी तो मैंने शादी करनी है, इसने कारोबार करना है, इसने तो बहुत आला ओहदे हासिल करने हैं, ये तो फला बनेगा फला बनेगा। दुनिया के बारे में तो वालिदैन बड़े सब वसीयत करते हैं, लेकिन कभी कोई आदमी बड़ा जो है, इल्ला माशाअल्लाह, सबकी नफी नहीं है, लेकिन तकरीबन हालत ऐसी है, हर बंदा यही वसीयत करता है बेटा अपना मुस्तकबिल बना लो दुनिया का, कल को मैंने चले जाना आपको कौन संभालेगा, अपने पांव पे खड़े हो जाओ। लेकिन कभी वसीयत करते हुए नजर आता है बेटा तुम्हें मर जाना है, मरने के बाद भी कुछ बना लो। ये है वो पहली वसीयत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया। फिर जब ये वसीयत है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ करना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। वो ये करना चाहिए कि जब ये मौत का वक्त आए, दुनिया, अजीजो अकारिब, वालिदैन, बहन भाई, रिश्तेदार, अस्तिका, मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले, मकान और महल के दरो दीवार, आपकी फैक्ट्रियों के दरवाजे और आपकी फैक्ट्रियों की कुर्सियां, वो सब रो रहे हों। जब तुझे मौत आए, मुझे मौत आए, ये सब चीजें रो रही हों और तू मुस्कुराकर हंसकर जो है वो मौत का इस्तेमाल कर रहा, तेरे चेहरे पे मुस्कुराहटें दिख रही हों, तुझे दुनिया के जाने का कोई गम ना हो, तुझे अपनी उम्र के खत्म होने का कोई गम ना हो, तुझे अपनी कुर्सी के छिन जाने का कोई गम ना हो, तेरे चेहरे पे मुस्कुराहटें आ जाएं तो ये वसीयत जो है वो अपनी काम करता हुआ दिखा देती, अपना काम करता हुआ हमें जो है वो नजर आ जाती, अपना नतीजा जो है वो देते हुए वह नजर आ जाती। उसी का तज़किरा शायद इस आयत में अल्लाह ताला ने किया है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदअून नुज़ुलुम मिन गफूरिर रहीम। फरमाया वो लोग जो अल्लाह को अपना रब मान लेते हैं, उसके बंदे बन जाते हैं और फिर सारी जिंदगी उसकी बंदगी में गुजार देते हैं, अपने रब का दरवाजा कभी छोड़ते नहीं है, उसके ऊपर कायम और दायम रहते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, इन बंदों पर आसमान से फरिश्ते नाज़िल होते हैं, वही लेकर तो अंबिया के पास आते हैं, लेकिन बशारतें देने के लिए इन लोगों को भी फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और वो आकर बशारतें देते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, डरने की कोई जरूरत नहीं है, खौफ ज़दा और गम खाने की कोई जरूरत नहीं है, ये मकान छूट रहा है छूटने दीजिए, ये रिश्तेदार छूट रहे छूटने दीजिए, ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नतें जो है वो तैयार कर रखी। जब फरिश्ते ये बशारत देते हैं तो इंसान इन्नका मय्यत, मरते वक्त जो है वो परेशान नहीं होता। दुनिया परेशान होती है तो होती रहे, वालिदैन रोते हैं तो रोते रहे, बेटा रोता है, बेटी रोती है, बीवी रोती है, रोते रहे, लेकिन वो आदमी जो है वो चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर जा रहा है, खुश हो रहा है और मौत को खुशी से गले लगा रहा है और कह रहे मैं इसी वक्त का तो इंतजार कर रहा था। दुनियादार इंसान वो तो भागता है, मैं मरने लगा हूं, मैंने मर जाना है, डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, बेटा भागो, मेरी जिंदगी को बचा लो जितना बचा सकते हो। लेकिन नेक आदमी तो इस वक्त का इंतजार कर रहा होता है, ये वक्त कब आएगा, वो मौत को खुशी से सीने लगाता है। लोग रोते हैं तो रोते रहे, वो तो मुस्कुराकर कहता है मेरे फरिश्ते तो मुझे मुबारकबाद दे रहे, वो तो मेरा इस्तिकबाल के लिए खड़े हुए हैं, वो तो मुझे बशारतें दे रहे हैं। और ऐलान होता है अल्लाह की जानिब से भी और फरिश्तों की जानिब से, घबराओ नहीं, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, दुनिया में भी आखिरत में भी। दुनिया ने दोस्ती छोड़ दी है तो छोड़ दी, हम तुम्हारे दोस्त, हम तुम्हारे वाली हैं, हम तुम्हारे मददगार हैं, हम तुम्हारे मुआवन हैं, हम तुम्हारे साथ हैं हर जगह पे। और उस जन्नत में अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए
जो मांगोगे, जो ख्वाहिश करोगे, वो सब कुछ अल्लाह ने तैयार कर रखा। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, ये मेहमानी है अल्लाह ताला की जानब से, उस बख्शने वाली जात की जानब से, उस रहम दिल जात की जानब से, जो बड़ा ही रहम करने वाली है और सारी कायनात से रहम बढ़कर जो है वो रहम करने वाली है, उसकी तरफ से ये मेहमानी आपके लिए तैयार कर रखी है। ये है इश्मा शेद फइन्नका मय्यित, आप जिंदगी गुजारिए, अनकरीब जो है वो आप फौत होने वाले हैं, फिर मरने के बाद क्या होने वाला है उसके लिए कुछ तैयारी कर लीजिए। अगर तैयारी की है तो इंसान को फिर मरने का गम नहीं हो। मरना तो हर किसी ने, मैंने भी मरना है, आपने मरना, हमारे आबा अजदाद मर चुके, दुनिया से जा चुके, कितने हमारे करीबी हमसे छोटे वो जा चुके, हमने हमेशा रहना है? नहीं रहना। न किसी डॉक्टर ने जिंदा रहना है, न किसी इंजीनियर ने रहना है, न किसी हकीम ने रहना है, न किसी पहलवान ने रहना है, न किसी बादशाह ने रहना है, न किसी गरीब ने रहना है, सब ने जाना है। लेकिन जिंदगी उसी की है, इश्माशिद फइन्नका मय्यित, जिंदगी गुजार लो, मरने वाले हो, लेकिन मरते वक्त तेरे चेहरे पे मुस्कुराहटें आ जाएं तो तू कामयाब हो जाएगा। अगर मरते वक्त दुनिया खुश हो गई, जान छूट गई, इससे जायदाद मेरे कब्जे में आ गई, इसको तो जाना ही चाहिए था, तू रो रहा हुआ, तो तेरी जिंदगी बेकार हो गई, तेरी सारी जिंदगी जो है वो बेकार चली जाएगी, दुनिया की भी बेकार हो गई, अगली तो आखिरत वाली तो बेकार होनी होनी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक तआला हमारी अगली जिंदगी बेकार होने से जो है वो महफूज फरमा ले, हमारी ये दुनिया की जिंदगी जो है वो हमारे लिए कीमती बना दे। चारों वसीयतों के बारे में बात करना चाहता हूं, लेकिन वक्त एक ही में गुजर गया है, इंशाअल्लाह मौका मिला तो बाकी बयान करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक तआला हमें अपनी जिंदगी जो है वो संभालने की, दुनिया वाली भी और आखिरत वाली जिंदगी भी संभालने की तौफीक नसीब फरमा दे, दोनों जिंदगियों में हमें कामयाब और कामरान फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।